So hey guys, in this video I will discuss another question from the cyber SG sheet, that is next permutation. So let's start. What is given to us? देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ना एक नंबर दिया गया है, ये से नम्स से यहाँ पे देख सकते हो आप, इन द फॉर्म ऑफ एरे। ये हमें नंबर दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल टू इट। ओके, सो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर एग्जाम्पल कि ये हमारा क्या दिया गया है, ये देखो ये हमारा क्या दिया था, एरे दिया था। सो द नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल टू इट, दिस इज 132. सो एज यू कैन सी इट, एरे कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सो दैट ऑल परम्यूटेशन आर पॉसिबल 3 फैक्टोरियल and 3 factorial is equal to 6. As you always know that all the permutations of this number is 1 to 3, these are the possible combinations. Okay, so here what you can find out, the next permutation of 1 to 3, that is यहाँ पे लिखा है ना 1 to 3, the next permutation possible is 132, that is these are output. Okay, so here you can see it, the complexity is huge because it is coming out to be big of n factorial because there are n elements, so the total permutation possible is n factorial. ठीक है, तो ये हमारे permutation हो गए, तो इसकी complexity बहुत high है, so we can't use it. Similarly for this number you can see it, the next permutation possible is this, but how you will find it? It is too complex to find this from this way, so we have to do another thing. So as you can see it, these are the numbers. Okay, if you find, I am just telling you a trick. If you find the numbers are in a descending order, it means it has the highest possible permutation. That is, you can see it from here, that is 5431. These numbers are in descending order. Similarly, if you choose this number, you can see it, it's just only in descending order. Means this is highest possible permutation possible is. So you can't find the next permutation of it. Okay, that I need to tell you. After that, suppose if I have only these numbers 7531. So after that, it is in a descending order, so you can see that it does not create any highest possible permutation. If it is possible, if 2 is present between it, so you have to find the next permutation of it. मतलब कुछ permutation possible होता है, तो हमें क्या है इसका, देखो इसका next permutation क्या आएगा, ये आप देख सकते हो 73125, ये आ गया. But how you will find it? Okay, so first of all, what you have to do is you have to be traverse from right side to left side, or you can say it to from the length of the array to the starting, you have to be traversed. After that you have to find a condition where you find element which is not lesser than यहाँ पे से पहले वाले एलिमेंट से. ठीक है, यहाँ आपको देखो 1 is smaller than क्या कहते हैं, मतलब 1 is क्या कहते हैं ग्रेटर देन 3. यस, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 is सॉरी माई मिस्टेक, 1 is less than 3. yes. उसके बाद 3 is less than 5. yes. 5 is less than 2. no. it means ये यहाँ पे क्या कर रही है, गड़बड़ पैदा हो रही है. ठीक है, so we have to be do something else. so the number which is creating problem is 2. so this is our index first. okay, we have to be traversed from the behind, from right side to left side, and what we have to find out that the number which is creating a problem, that is, if first of all we can see the right side number is smaller than the number coming after it. so if this pattern is not followed, then this number is index of I. मतलब ये I वाला जो है हमारा एलिमेंट, वही हम लोग I इक्वल टू इंडेक्स 1 कह देंगे. ठीक है, तो यही नंबर को हम लोग क्या कह देंगे, इंडेक्स 1 हो जाएगा ये. उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली जस्ट स्वैप इट फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट कमिंग आफ्टर इट. मतलब जो इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा ना, वी हैव टू बी, मतलब हमें कहाँ सर्च करना है, इसकी नेक्स्ट हम लोग करते जाएंगे सर्च, और हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर है जो नेक्स्ट ग्रेटर देन इट है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर लेंगे. ठीक है, हमें 2 और 3 को स्वैप कर लेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव जस्ट स्वैप्ड सिंपली 2 and 3. सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ 2 और 3 को स्वैप किया तो 73521, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आ गया. आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज 7 और 3 हमें पता चल गई सॉर्ट हो गए. उसके बाद द रिमेनिंग नंबर वी हैव टू बी रिवर्स. If you will reverse now, then you will find our answer, because as you can see here, these two numbers are same. It means the method you have to follow is first swapping the number. We have to be start searching from the right side. After that, what you have to find if the number is smaller than the number coming after it, you have to follow that pattern. If this pattern is not followed, you will find a mistake. You have to mark that element from index 1, and after that you have to find the next number greater than 2 it, and you will name it index 2, and just do swapping of it
and when after swapping you have to be just reverse these numbers coming after it, so what you will get the required answer. Okay, तो यही हमें लगाना है. उसके बाद what you can see it, देखो ये हमारा कोड है. तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि सबसे पहले मैंने पीछे से स्टार्ट किया, फिर क्या चेक किया हम लोगों ने कि इफ नम्स ऑफ i इज लेस देन i प्लस 1, यही मैंने आपको बताया था. फिर क्या जो है जहाँ पे हमारी दिक्कत आएगी उसको इंडेक्स 1 दे देंगे और सिंपली ब्रेक कर देंगे वहां से. ठीक है, यहीं पे मैंने यही लिखा है, डू ट्राई टू फाइंड इंडेक्स 1 ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड. अगर हमें करंट एलिमेंट मिल गया जो स्मॉलर देन द नेक्स्ट एलिमेंट अगर मिल गया तो इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट परमिशन. इफ नो एलिमेंट इज फाउंड देन इट रिमेन्स -1. अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसको सिंपली क्या रखेंगे, -1 ही रखेंगे. ठीक है, हमें इतना समझ आ गया. आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज कि हमें इंडेक्स 1 मिल गया ना, हमें इंडेक्स 1 मिल गया तो हम लोग क्या कर देंगे कि उसके बाद में रिवर्स लगेगा. पहले क्या लगेगी, यहाँ पे स्वैपिंग होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्वैप करेंगे. ये हमारा क्या है, फाइंड आउट करेंगे कि हमारा नंबर जो है, हमने क्या किया कि स्टार्टिंग से लेके हम लोग क्या करेंगे एंड तक, और हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर देन नंबर टू ए एंड वी फाइंड इंडेक्स 2. मैंने आपको बताया था कि जहां हमें नंबर मिल जाएगा, जैसे 2 मिला था हमें, आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, हम वी विल फाइंड द नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 2 8. यहाँ पे 2 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा था 3, दैट वी हैव फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन 2. तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, इंडेक्स 2. इंडेक्स 2 दे दिया और सिंपली ब्रेक कर देंगे. उसके बाद पहले मैंने बताया था आपको स्वैप होगा देन रिवर्स होगा. ठीक है, तो ये स्वैपिंग का कोड है. आपको पता ही होगा कि पहले एक वेरिएबल होता है, उसको हम लोग क्या देते हैं, टेम्प नाम का वेरिएबल था, उसमें पहले हम लोगों ने आई वैल्यू स्टोर कर दी, फिर नंबर आई और जे को कंपेयर करेंगे, फिर नंबर जे को हम लोग क्या वैल्यू दे देंगे, टेम्प की. ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली रिवर्स का भी कोड बहुत ज्यादा ईजी होता है, आपने पढ़ा ही होगा पहले कि देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जो एंडिंग नंबर है उसको जे से लिखा है, और जब तक स्टार्टिंग नंबर जो होता है वो एंड तक नहीं पहुंचाता तब तक हमें स्वैप करते जाएंगे. आई की वैल्यू मतलब स्टार्टिंग से हम लोग बढ़ते जाएंगे और पीछे से डिक्रीज करते जाएंगे. तो ये हमारे रिवर्स का कोड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे तो यही देख सकते हो आप लोग. तो स्टार्टिंग में मैंने क्या दे दिया, -1 दे दिया है, और मैंने फॉर लूप लगाया फ्रॉम स्टार्टिंग. हम लोगों ने स्टार्टिंग मतलब पीछे से लगाया है. तो मैंने क्या चेक करने के लिए फाइंड आउट किया कि इंडेक्स 1 कौन सा होगा, जहाँ पे हमारा एलिमेंट ग्रेटर देन नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको इंडेक्स 1 दे देंगे. सिंपली फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स का कोड लगाया, तो एल्स में हमें इंडेक्स 2 फाइंड किया है, उस पर सिंपली पहले स्वैप करेंगे देन रिवर्स करेंगे, और ये हमारा स्वैप और रिवर्स का कोड लगाया. स्वैप में पता ही होगा कि टेम्प नाम का वेरिएबल है, उसको नाम आई दे दिया, फिर पहले कंपेयर कर लेंगे, आफ्टर दैट नम्स ऑफ जे को टेम्प दे देंगे. ठीक है, रिवर्स का कोड है ये. फिर सिंपली इसको रिवर्स कर लिया, पहले स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, आई इक्वल टू स्टार्ट हो गया, जे क्या हो गया, उसकी एंडिंग हो गई. फिर हम लोग करेंगे कि स्टार्टिंग से हम लोग जब तक व्हाइल लूप लगाएंगे फिनिश नहीं हो रहा तब तक स्वैप करेंगे, फिर स्टार्टिंग से हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, पीछे से डिक्रीज करते जाएंगे. ठीक, बहुत इजी कोड. देख लो आप, ये कोड बहुत ज्यादा इजी था. सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा. थैंक यू.